Good morning, ma'am. How are you Good morning, madam. Good morning. all? Everyone, please switch on your video. Yes. Yes, where are the students? Everyone, please switch on your video. Anjali, Anil, yes, Aryan, Deepak. Anjali, you have logged in from two devices. Okay, okay. Yes, which topic we have done in last class? Yes, Anjali. Yes, which topic we have done? Uh, Aviary we have done. Yes, Yes, ma'am. Aviary and binary search tree, binary tree we have done now. Okay. Yes, today we will cover various red black tree, B tree, okay, and splay tree and double A tree, okay, and graph, okay. Yes, yes. Traversal of, yes, traversal of tree we have done now. Okay. Okay, now I am sharing the screen.
Yes. Yes, my screen is visible to all. Yes, ma'am, it's visible. Okay. Yes, ma'am. Last time we have covered avian tree. Okay. Now we will cover multi-way trees. Okay. Today we will cover bee tree, this. Thank you. Yes, first we will cover bee tree. Okay. Second red black tree. Okay, red black tree and splay tree and double A tree. And three total 7 trees are there. Okay, in your syllabus 7 trees are there. Okay, we have covered 3 trees. Okay, binary tree, binary search tree and aviary tree. Okay, first is B tree. B tree means multi-way tree. Okay, multi-way tree in binary search tree, each node holds a single value. Okay, we have done the particular this concept. Each node contain only single value. Okay, and has at most 2 branches, 2 edges. Okay, left branch have value less than the node value, which those in the right branch have value greater than the node value. Okay, we have done this particular concept. Okay, now we will move on multi-way tree. Multi-way tree means multi-way means multiple values we can contain in a single node. Okay, same we can follow this particular rule on some particular subtrees. Okay, leftmost, if we keep 2 values, okay, if we keep 2 values in each node, the that means at most 3 branches. The descendants are split into 3 groups maximum. Okay, leftmost descendant will have the value less than the first node in the root. The middle descendant will have the value between the 2 values in the root node. Okay, and same rightmost descendant will have the value greater than the second value in the root node. Okay, this is a particular multi-way tree. We can also call M tree. Okay, this is example. Okay, this is a particular example of multi-way tree. There are various nodes. Particular, we can suppose this is a particular structure of multi-way tree. Multiple way tree में हम इसके अंदर जो particular node contain करते हैं, each node contain maximum nodes n-1. Okay, according to order. How many nodes we can enter? We can set in a particular node according to the order, according to the value. Okay. Yes, this is a simple example. This is a very simple example. We have set 50 and 60 value. Okay, and left side we can contain value less than this particular node, and between section we can insert a particular value into the according to the in between value, and this is a particular right value. Same you can set, this is a 84 in between, same 53, and this is a particular left area. Okay, 20 and 30 values left from this particular value. Okay, this is example of multi-way tree, M tree. Next, move on B tree. B tree is also a multi-way tree, M-way tree. Okay, a B tree is a balanced M-way tree. Okay, B tree is known as the balanced sort tree. Sort means arranging the data. Okay, this is a particular balanced tree. Okay, we have done this particular concept on avial tree. Avial tree क्या आपका height balance tree. उसमें हम height को balance करके चलते हैं. If find it used in external sorting. Okay,
अगर सेम ये पर्टिकुलर आप ट्री बनाते हो, अगर आपने बनाया इसमें बाइनरी सर्च ट्री में, ओके, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सेम आप पर्टिकुलर बनाते हो तो उसके अंदर लेंथ वाइज कितना आपका लेंथ होगा, है ना। बट इसके अंदर क्या होता है, आपका साइज जो डिस्क एक्सेस साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ओके। टू रिड्यूस डिस्क एक्सेस several conditions of the tree must be true. The height of the tree must be kept to the minimum, okay. Clear? This is a particular valid point. Height of the tree must be kept to a minimum. There must be no empty subtrees above the leaves terminals of the tree, okay. And the leaves terminal, yes, this is a particular point. Have you noticed this particular point? There must be no empty subtrees above, okay. Subtrees means, suppose this is example, like अब मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड को आपने रिमूव कर दिया तो ये किसी भी एंगल से बी ट्री नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज सेम लेवल पर आपके सारे नोड कंप्लीट होने चाहिए, चाहे सिंगल नोड कंटेन करो, ठीक है। आपने यहाँ पे लास्ट लेवल तक बिल्कुल सेम सबके अंदर नोड होने चाहिए, एटलीस्ट वन, ओके। सेम पर्टिकुलर लेवल के अंदर है। The leaves terminal nodes of the tree must all be on the same level. Okay, clear? All nodes except the leaves node must have at least some minimum number of children. कुछ ना कुछ चिल्ड्रन होने चाहिए मिनिमम, जितने आपके लीव्स लास्ट तक है, ठीक है। And this is a particular B tree of order M has the following properties. Each node has a maximum of M children. ओके, एक जो पर्टिकुलर नोड है कंटेन कर सकती है मैक्सिमम ऑफ m चिल्ड्रन एंड मिनिमम ऑफ m डिवाइडेड बाय 2 चिल्ड्रन, ओके। यस, each node has one fewer keys than children with the maximum m minus 1 keys, okay. Now I am showing the example. Yes, this is example of B tree. There are elements are particular 1, 5, 6, 2. These are elements, okay. And this is a particular order. Order means we can set a particular value according to order. अब सपोज करो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर है, डिग्री कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज हैं, आप कितनी वैल्यूज कंटेन कर सकते हो एक पर्टिकुलर नोड के अंदर, ठीक है। n minus 1, okay, we can contain, this is a particular 4 order, so we can contain only 3 values, okay. Yes, अब देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ हाउ टू मेक ए पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर बी ट्री, ओके। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 1, 5, 6, 2, 8, 11, 13, 18, 27 and 9, ओके। एंड आपको इसके अंदर क्या कंटेन करना है, बी ट्री, ओके। दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेप 1, यू हैव टू मेंशन स्टेप 1। स्टेप 1 में यू हैव टू एंटर वन नोड, इंसर्ट 1। आप यहाँ पे इसमें शो करोगे इंसर्ट 1 नोड। इन स्टेप नंबर 2 इंसर्ट 5, आपको इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंड करना है हर पर्टिकुलर स्टेप में, ओके। दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ बी ट्री। स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन स्टेप नंबर 1, इंसर्ट एलिमेंट 1, ओके। सेकंड एलिमेंट इज 5, जस्ट यू हैव टू इंसर्ट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस 1, 5। यहाँ पे ऑर्डर गिवन है आपके पास 4 का। 4 मीन्स आप इसके अंदर n minus 1 मतलब 3 वैल्यूज वी कैन कंटेन, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज 1, 5 and 6, okay. And next step 1, 5, 6 and 2, insert element 2, okay. But we can't insert, why? Because we can insert only 3 values at a time in a particular node, okay. Insert value is 2, so you have to split this particular part, okay. We can divide a particular part in mid section. This is a particular midway value,
Okay, mid के accordingly just you have to move this particular parent node में convert करोगे, and this is the right value, left value 1 and 6 is right value. Okay, and just you have to insert 2. 2 कहाँ पे insert होगा? 1 after 2. Okay, after that insert 8 element. Okay, yes, अब आपका 8 कहाँ पे insert होगा? देखिए पहले आप इंसर्ट करें 1 2, आफ्टर दैट यू हैव टू इंसर्ट वैल्यू 6 एंड 8. ओके, 8 वैल्यू आपकी यहाँ पे सेट हो गई. दिस इज अ ग्रेटर वैल्यू. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू इंसर्ट 11. अब देखिए आपने 11 राइट साइड में इंसर्ट कर दिया. ठीक है, हैव यू गॉट ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स? हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है या नहीं? यस यस बच्चे, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Up next is a 6, 8, 11. Next value is 13. 13 value you have to insert, but we can't insert. Okay, because 3 element maximum we can insert 3 elements. 6, 8, 11 and 13 we can't insert. Okay, so just you have to move this particular mid value into convert into parent value. This is the parent value. Okay, just you have to insert this particular base. Okay, and yes, first of all you have to insert 5. आफ्टर दैट 8 वैल्यू. ओके, आपको यहाँ पे जो 8 वैल्यू ऊपर शिफ्ट करनी है. आफ्टर दैट 1 2 एंड यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे 11 एंड 13 वैल्यू. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर मिड वैल्यू 5 and 6. In between just you have to mention 6 value. This is a mid value. Okay, after that you have to insert 18. Okay, 18 कहाँ पे इंसर्ट होगा आपका? यहाँ पे आपका 18 इंसर्ट होगा. ठीक है, आपको कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. ओके, यू कैन आस्क एनी क्वेरी. यस, वी हैव इंसर्टेड 5 8. okay, and next element is 20 element. Just you have to insert this particular place, but we can't insert, so you have to move this 13 value on upper side. Okay, 5 8 13 you have to insert this place. Okay, and next we will add the particular element 1 2 and 6. After that 11 18 value, and next is 20 value. Okay, and next is 7 and 9. Okay, 7, this particular point we have added, or 9 elements, this is a particular place. Okay, तो आपके पास लास्ट तक ये पर्टिकुलर आपका ट्री आपको हर स्टेप में आपको ऐड करना है. ओके, जस्ट यू हैव टू मेंशन द स्टेप्स आल्सो. आपको इसके अंदर स्टेप्स भी मेंशन करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रिएट करना है. ठीक है, ये आपका एग्जांपल क्या था? बी ट्री का. अब सबको बताइए, सबको क्लियर हुआ या नहीं? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्री. ओके, सबको क्लियर हो गए यहाँ तक? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? आज कोई बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ? यस, यस, कोई बोलेंगे नहीं? अंजलि, यस, क्या हुआ? एक सेकेंड. Okay, next we'll move on. Next tree is red black tree, splay tree and AA tree. We will cover these particular trees. Okay, one by one we will cover. First tree is splay tree.
Yes. My screen is visible to all? Hello? Yes, Yes, ma'am, ma'am. it's visible. Splay tree क्या होता है? Yes, splay tree is another variant of binary search tree. In a splay tree, recently accessed element is placed at the root of the tree. Okay, basically splay tree is a self-adjusted binary search tree. Okay, in which every operation on element rearranges the tree so that the element is placed at the root position of the tree. Okay, suppose you want to insert any element. Okay, first of all you have to insert this particular place in a upper side. root में आपको उसको लेके जाना है, उसकी शिफ्टिंग करनी है, उसकी पोजीशन करनी है, रीअरेंज करना है, आपको रूट में लेके जाना है. ओके, जो भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर रूल ऑफ स्प्लेइंग. ओके, splaying an element is a process of bringing it to the root position by performing suitable rotation operation. There are various types of operations of avial tree. Okay, देखिए इसके अंदर रोटेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ी है, किसकी रोटेशंस कवर करी थी? एवियल ट्री की. एवियल ट्री में आपके पास कितने टाइप की रोटेशन होती हैं? 2 टाइप्स की, सिंगल रोटेशन एंड डबल रोटेशन. ओके, आपको पेपर में रोटेशंस भी आ सकती हैं. ओके, एंड स्प्ले ट्री के अंदर आपके पास रोटेशंस है. रोटेशंस के अकॉर्डिंगली जस्ट यू हैव टू क्रिएट स्प्ले ट्री. ओके, these are particular rotations in splay tree. These are very simple. Okay, first is zig rotation. zig का मीनिंग क्या होता है? zag रोटेशन, zigzag, zig ट्री, अलग अलग आपकी रोटेशंस है. पहले आपको जिग क्लियर करनी है. अगर जिग क्लियर हो जाती है तो उसी का ही जस्ट आपको यूज करना है जिग. जैग आपको क्लियर होता है तो आप यूज करोगे उसी का ही जैग. डबल हो जाता है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपके पास क्या आती है? जिग रोटेशन. ओके, जस्ट यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर रोटेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप. दिस इज अ पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप. ओके, जिग रोटेशन में जस्ट वेरी सिंपल. zig rotation in splay tree is similar to the single right rotation in avial tree. Okay, just you have to mention a particular place. Okay, first is splaying tree. This is a particular step, splaying tree. splaying मतलब accessing tree. We want to access a particular element, 3 element आपको access करना है. 3 element तो आपको ऊपर लेके जाना है. How to place this particular value in at the root value? Okay, how to convert? This is a particular, you have to use zig rotation. Zig rotation के लिए just you have to rotate this particular point right side. देखो जो आपका left है उसको right side में convert करना है. ठीक है, 3 particular value को interchange करना है. ठीक है, यहाँ से 3 आपका यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया. ठीक है, और आपको इसको क्या करना है? वैल्यू को आपने इंटरचेंज कर दिया. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द राइट प्लेस. दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म पोजीशन. ओके, जो राइट लेफ्ट में था उसको राइट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? दिस इज अ जिग रोटेशन. जिग में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे एक स्टेप गिवन है, आप जस्ट उसको मूव करोगे. ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर होगा? कोई डाउट? फर्स्ट फॉर्म क्लियर हो गई. जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 पर्टिकुलर वैल्यू है और 5 वैल्यू है. आपने जस्ट इसको इंटरचेंज कर दिया. 3 आपके पास यहाँ पे आ गया और आपका 5 यहाँ पे आ गया. ये हमारी जिग फॉर्म होती है, जस्ट रिवर्स. ओके, और आपने इसी को यूज करना है. नेक्स्ट आपके पास क्या आती है? जैग. जैग रोटेशन में क्या है? जस्ट इसी का अपोजिट, इसी का ही जस्ट अपोजिट है. अब जैसे आपके पास यहाँ पे राइट में गिवन है 5 वैल्यू और आपने इसको क्या करना है? चेंज करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है. ये हमारा जैग होता है. ठीक है, जैसे सपोज करो ये वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने इसी का जस्ट कन्वर्ट करना है. यहाँ पे आपका 5 आ गया ऊपर एंड दिस इज ए पर्टिकुलर लेफ्ट पॉइंट. इसी का जस्ट रिवर्स है ये क्या आपका? जैग फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट इज द जिग जिग रोटेशन. अब जिग जिग का मतलब क्या होता है? जिग जिग रोटेशन इन स्प्ले ट्री इज ए डबल जिग रोटेशन. हम लोगों ने जिग पढ़ा है तो उसी का डबल रोटेशन हो गया. ठीक है, अब सपोज करो ये आपके पास पॉइंट है. क्या पॉइंट है आपका? स्प्ले 2.
स्प्ले 2 में आपने क्या करना है, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है स्प्ले 2 कि आपने 2 है इसको एक्सेस करना है और आपने रूट पे लेके जाना है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली जस्ट यू हैव टू पुट ए पर्टिकुलर वैल्यू, आपने मूव करना है, ठीक है। अब मूव कैसे मूव करोगे इसको, ओके आपने इसका पूरा इंटरचेंज कर देना, यहाँ से आप इसको मूव करोगे, ठीक है। फिर आपने इसको मूव करना है, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपका 5 वैल्यू आपके पास क्या होगी, डाउन साइड आ जाएगी, 2 आपका एज इट इज ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ से जस्ट आपने मूव कर देना है, इन दोनों को आपने जस्ट इंटरचेंज कर देना है 5 एंड 2 और ऑटोमेटिकली आपने राइट साइड में इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, zigzag रोटेशन। नेक्स्ट इज अ zigzag रोटेशन। अब देखिए zigzag रोटेशन में क्या होता है, zigzag क्या है आपके पास, zag का डबल रोटेशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रिएट करना है। अब इसके अंदर सपोज करो प्ले करना है किसको, 6 को, जस्ट आप इसी को, जो 6 है आपका अपर साइड जाएगा, 3 आपका डाउन साइड आएगा, देखो। और आपके पास यहाँ पे मूव लेफ्ट था, राइट था आपका, लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, ओके। हैव यू नोटेड ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स? यस, मैम। आपको सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको 4 टाइप की रोटेशंस बताई हैं। फर्स्ट आपने बताया इसके नाम जिग जैग, जिग रोटेशन एंड जैग रोटेशन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, जिग रोटेशन। जिग रोटेशन में क्या होता है, ये बंद कर देंगे लोग। जिग रोटेशन में क्या होता है, जिग रोटेशन इन स्प्ले ट्री, आपने क्या करना है इसके अंदर स्प्ले करना है 4 को, ओके। दिस इज ए पर्टिकुलर डबल रोटेशन जस्ट वी हैव कवर्ड इन ए एवियल ट्री, ओके। जब हमने एवियल ट्री किया था उसके अंदर हमने पूरा स्टेप आपको मैंने बताया था कैसे कवर करना है, बिल्कुल वही का वही स्टेप है। आपको क्या करना है इसके अंदर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 3 आपका यहाँ पे इंटरचेंज होगा 5 4 और उसकी डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जो लेफ्ट था वो राइट में कन्वर्ट हो गया एंड जस्ट यू हैव टू मूव दिस पर्टिकुलर कन्वर्ट इन ए जिग रोटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट जैग रोटेशन। एवियल ट्री में जैसे हमने किया था वही का वही सेम चीज इसके अंदर है, आपने 5 को ऊपर इसके अंदर करना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मूव करना है। देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट है 2 3 एज इट इज है, जस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने यहाँ से मूव करते हुए इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट होके इसके अंदर कौन सी रोटेशन बन जाएगी आपकी, जिग जैग रोटेशन। क्लियर दिस पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट? हेलो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट आपको Yes, ma'am. आफ्टर दैट आपको जैग रोटेशन करना है। नेक्स्ट इज अ जैग जिग रोटेशन। पहले क्या था आपका पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपका राइट में था, लेफ्ट में था इसका, ये राइट में और ये लेफ्ट में, इसी को हमने क्या कर दिया जस्ट अपोजिट, ओके। इसी के अकॉर्डिंगली जस्ट 5 3 4 आपका इस वे में हमने शो किया, तो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट यू हैव टू मूव दिस पर्टिकुलर प्लेस। 4 आपका पास यहाँ पे आएगा, 3 डाउन में जाएगा, ठीक है। और आपने 4 को आपने जस्ट ऊपर करना है, इसके अकॉर्डिंगली आपने मूव कर देना है, तो आपका ये पर्टिकुलर स्टेप बन जाएगा। ये जैग है और ये जिग रोटेशन है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको स्टेप बताए हैं ये सारे पॉइंट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जिग रोटेशन, जैग रोटेशन, जिग रोटेशन, ये सारी रोटेशंस आपकी इंपॉर्टेंट है। आप सबने नोट कर लिया इसको, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर रोटेशन, नोट कर लिया? Yes, ma'am. देखो इंसर्शन ऑपरेशन इन स्प्ले ट्री। Insertion means suppose you have to insert a particular node, okay, these are particular steps, okay. Step 1, check whether tree is empty. If tree is empty then insert the new node at the root node, okay. First of all you have to check, after that अगर आपका tree empty है तो you have to insert, okay. You can insert a particular new node at the root node, okay, and exit from the operation. If tree is not empty, अगर मेरी कोई tree empty नहीं है तो वो new node insert नहीं होगी, जो particular node होगी वो leaf node insert होगी, as a leaf
not as a root node. Okay, and split accordingly we can split the particular nodes. ऑपरेशन जो मैंने आपको रोटेशन के ऑपरेशन बताए, जस्ट यू हैव टू इंसर्ट पर्टिकुलर पॉइंट्स. ओके, और ये पर्टिकुलर आपके पास क्या है, डिलीट नोड. आप कोई पर्टिकुलर नोड को डिलीट करोगे, ठीक है, रूट से ही. जो पर्टिकुलर नोड आपकी रिमूव होगी रूट पोजीशन से ही आपके पास क्या होती है, डिलीट होती रहती है. ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, स्प्लिट ट्री. जो पेपर में क्वेश्चन आता है आपका स्प्लिट ट्री के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है कि आपने रोटेशंस बतानी है जो पर्टिकुलर आप ट्री यूज करोगे. ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर व्हाट इज स्प्लिट ट्री, डिफाइन, and after that define the operations, define the rotations of split tree. ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, रेड ब्लैक ट्री. अब देखो रेड ब्लैक ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर बार पेपर में इसका क्वेश्चन आता है रेड ब्लैक ट्री का. ओके, अब रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, रेड ब्लैक ट्री वी कैन से बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. ओके, अब जितने अभी तक हम लोगों ने ट्रीज पढ़े हैं, ओके, जो पर्टिकुलर ट्रीज हम लोगों ने इसके अंदर यूज करे हैं, जो पर्टिकुलर हमने, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा इस टाइप का ट्री नहीं था कि आप पर्टिकुलर ट्री को कलर दो. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर एडिशनल एट्रीब्यूट, कलर. ओके, विच कैन बी रेड और ब्लैक. कलर हो सकता है एक पर्टिकुलर नोड का रेड और ब्लैक. ओके, एंड इसके अंदर भी वेरियस टाइप की क्या होती है, रोटेशंस होती है. ओके, अकॉर्डिंग टू कलर, कलर के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपके पास क्या है, मेंशन्ड है वेरियस केसेस. ओके, इसमें क्या आता है, व्हाट इज रेड ब्लैक ट्री. क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री. ओके, एंड हाउ टू क्रिएट. ओके, हाउ टू क्रिएट ए पर्टिकुलर रेड ब्लैक ट्री. ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, these are properties. First is every node is either red or black. okay, जो पर्टिकुलर नोड होगी या तो रेड होगी या ब्लैक होगी. द रूट इज ऑलवेज ब्लैक. ओके, एवरी लीफ मिल इज ब्लैक. ओके, इफ नोड इज रेड, अगर आपकी एक नोड रेड है, देन बोथ इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक. ओके, and one thing is that when we insert a particular node, it should be red. Okay, for each node, all paths from that node to descendant leaves contain the same number of black nodes. Okay, these are particular term, properties, rules of red black tree. Please note it down, all the particular points. This is a very very important question. Yes, next is the cases. ये तो ऐसे दिया हुआ है आपका. अब आपको क्या करना है, यूज करना है केसेस. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर केस नंबर 1. वी हैव 3 केसेस. ओके, अब जस्ट यू हैव टू लर्न ऑल दिस केसेस. फर्स्ट केस इज अंकल वाई इज रेड. व्हाट इज माय अंकल. ओके, यहाँ पे अंकल का क्या मतलब है, अंकल का मीनिंग क्या है, सपोज वी हैव जस्ट इंसर्ट दिस पर्टिकुलर नोड. ओके, आपने अभी नोड जो इंसर्ट करी है, कौन सी नोड इंसर्ट करी है, बी. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बी नोड इंसर्ट करी है, और वो कौन सी करी है आपके, चाहे लेफ्ट में करो चाहे राइट में करो. बट यहाँ पे जो y है ना, y क्या है, इसका अंकल. किसका, इस पर्टिकुलर नोड का. ठीक है, अगर वो अंकल यहाँ पे रेड है, मतलब कि जो पर्टिकुलर दोनों ब्रदर हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, रेड. ओके, देन यू हैव टू चेंज द कलर. आपको कलर चेंज करना है उस टाइम में. जस्ट यू हैव टू चेंज द कलर. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू चेंज द कलर, ब्लैक कलर. आपने इन दोनों को ब्लैक में कन्वर्ट किया. ठीक है, जब ये दोनों ब्लैक हो गई तो आपकी जो रूट थी वो तो ब्लैक ही थी ना, तो अगेन आपने उसको रिकलर करना है, किसमें, रेड कलर. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर फर्स्ट केस. अब देखो मैंने आपको फर्स्ट केस एक्सप्लेन किया है. आपका लेफ्ट में हो चाहे आपका राइट में हो, ये चीज ध्यान रखना. चाहे आपका लेफ्ट में, यहाँ पे लेफ्ट में है, और यहाँ पे आपके पास अगर राइट में हो तब भी कैसे वर्क करेगा. आपने जस्ट यू हैव टू रिकलर, नोड को रिकलर में कन्वर्ट करना है. देखो ये राइट साइड है. दिस इज ए केस नंबर 1.
ठीक है, समझ में आया या नहीं? हेलो, Yes, ma'am, it's clear. okay. Next is a case number 2. Case number 2. Okay, case number 2 means y is black. y क्या है आपके पास? This is a particular y. आपके पास यहाँ पे ना कोई नोड ही नहीं है. जब कोई नोड नहीं होती ना तो एक नील होता है यहाँ पे. नील का मतलब लीफ. लीफ भी नहीं है, मतलब कोई नोड ही नहीं है जस्ट आपके यहाँ पे. ठीक है, और जब आपके पास यहाँ पे y is black and z is right child. और जो z का मीनिंग क्या है? जो इसमें आपने जो इंसर्ट करी है नोड, वो आपने राइट में इंसर्ट करी है यहाँ पे. ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू रोटेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहां से आपको रोटेट करना है. ओके, बी आपके पास कहाँ जाएगा? पेरेंट. और आपके पास जस्ट यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन आल्सो. Okay, just you have to change the direction. Right to left we have converted. Okay, this is the particular case number 2. Clear? Yes, case number 2 clear. This is a very simple. Okay, next is the case number 3. Case number 3, y is black. Same to same. Y is black, but z is left child. Z, this is a particular Z child. First case number 2 में क्या था? Right child था. ठीक है, Z जो था ना आपका, वो राइट चाइल्ड था. तब हमने इसकी क्या चीज चेंज किया था? आपने डायरेक्शन. ओके, बट आपने इसके अंदर क्या चेंज किया? इसके अकॉर्डिंगली क्या आपके पास? लेफ्ट चाइल्ड है. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर जो आपका Z है वो लेफ्ट चाइल्ड है. जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस केस. आपने क्या करना है? रोटेट करना है. आपने ऊपर जो B है आपके पास, B से आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को रोटेट करना है. ठीक है, B से जस्ट यू हैव टू रोटेट दिस पर्टिकुलर प्लेस. ओके, ये कौन सी रोटेशन है? आपको याद हो तो एवियल की Zag. आर रोटेशन. ओके, आर रोटेशन है ये. जस्ट यू हैव टू रोटेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. फ्रॉम बी से आपने इसको रोटेट करना है, और ए आपके पास लेफ्ट में और सी आपका राइट में चला जाएगा. ठीक है, दिस इज ए केस ऑफ 3. आपके पास टोटल 3 केसेस हैं. ओके, एंड पेपर में आपके केसेस भी आते हैं, इसका शॉर्ट नोट भी आता है. ओके, और आपके पास क्या है? ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, प्रॉपर्टीज भी आती हैं. और हाउ टू पर्टिकुलर क्रिएट, हाउ टू क्रिएट, आप क्रिएट कैसे करोगे. ठीक है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है तो बताइए. मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी एवियल ट्री की. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस 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 यस, ओनली अंजलि आंसर करिए. और वो क्लियर नहीं हो रहा क्या? हेलो अखिल. Yes, ma'am. It's clear. Okay, we'll move on. A small video of this particular explaining this particular tree. Okay, creating a particular tree of Abel tree. Just this is a very simple example. Yes, देखिए, we have 6 nodes. Okay, 1 2 3 4 5 6 node there. Okay, अब देखिए आपको one by one just you have to insert all the particular nodes and change the cases also. Okay, first we have insert one node. Okay, inserting node should be red. First node, inserting node should be red. Okay, and this is a we will check. This is a particular root node. Okay, then we can change into the red to black. Convert the particular red node to black node. Okay, just you have to change this particular place, point node. Okay, and you have to change the color. And this is a these particular points are, ये क्या है आपके points? इनको क्या बोलते हैं? नील. ठीक है, आपने इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना होता. जस्ट यू हैव टू, आपने इसको नील ऐसे देना होता है. ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट.
देखिए आपने इंसर्ट किया यहाँ पे 3 नोड। अब देखिए यहाँ पे कोई केस यहाँ पे फॉलो होगा? यस, this is a particular right node. Okay, this is a particular right node. Okay, right node is 3 and this is a particular nil node. मैंने आपको बताया था जो y है वो ब्लैक है, मतलब आपका nil है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना होगा? यस, यू हैव टू यूज केस नंबर 3। आप उसके लिए आप यूज करोगे केस नंबर 3। जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर नोड। आपने डायरेक्शन चेंज करनी है। 2 आपके पास अपसाइड जाएगा, 1 लेफ्ट एंड 3 राइट। दिस इज अ पर्टिकुलर केस नंबर 3। अब आपका केस नंबर 3 के अकॉर्डिंगली आपका रूट ब्लैक होना चाहिए। ओके, दिस इज अ रेड नोड। ओके, यू हैव टू चेंज रीकलर दिस पर्टिकुलर नोड। देखो आपने यहाँ पे इसके अंदर रिकलर करना है। सारी ब्लैक नोड नहीं हो सकती या सारी रेड नोड नहीं हो सकती। ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, रूट को कन्वर्ट कर दिया इन ए ब्लैक नोड। ओके, एंड दिस इज वी हैव टू चेंज द कलर इनटू रेड कलर। यस, वी हैव टू इंसर्ट 4 नोड। अब जैसे आप यहाँ पे 4 नोड इंसर्ट करोगे तो कौन सा केस होगा इसमें? यस, बताइए। अंकल आपके पास यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट, अंकल भी और यहाँ पे जो इसके अंदर इसके फादर है, पेरेंट है ना इसका, और ये इसके अंकल हुआ, तो ये दोनों आपके रेड नोड्स हैं। अगर रेड नोड होते हैं तो क्या करना होता है? Case यस, 1 will change the री color. कलर। ओके, केस नंबर 1 यू हैव टू अप्लाई केस नंबर 1, जस्ट यू हैव टू रीकलर द नोड। आपने इन दोनों को ब्लैक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसको रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने रीकलर कर दिया। ठीक है, लेकिन आपकी ऑलवेज आप ये नोट करना कि कभी भी रेड नोड आपकी रूट नोड नहीं होती। ये तो केस नंबर 1 को हमने सॉल्व किया, बट आपको रीकलर करना। ठीक है, अगेन जस्ट यू हैव टू रीकलर। दिस इज ए रूट नोड 1 3 एंड इंसर्टिंग नोड इज 4। ओके, एंड आपको नेक्स्ट इंसर्ट करना है 5। अब देखिए आप नेक्स्ट इंसर्ट करना है आपको 5। अब जैसे आप इंसर्ट करोगे 5 तो यहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कौन सा केस फॉलो होगा? यस, केस नंबर 3 rotation. केस नंबर 3। यस, केस नंबर 3 आपका होगा, आपका 4 जस्ट आपने अपसाइड कन्वर्ट करना है, 3 लेफ्ट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट इज 6। आपने 6 एलिमेंट इंसर्ट किया। देखो इंसर्ट 6, जैसे आप यहाँ पे 6 एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो सेम केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1 जस्ट यू हैव टू चेंज द कलर। आपको कलर चेंज करना है इसमें। समझ आ गया? आपने इसको Yes, ma'am. रिकलर कर दिया, ये आपका कलर चेंज हो गया इसके अंदर, तो लास्ट आपका यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट हो गया। दिस इज अ पर्टिकुलर रेड ब्लैक। अब बताइए कोई डाउट है किसी को? तो एनी डाउट? मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल 1 2 3 5 6 तक का एग्जाम्पल ले लिया, ऑटोमेटिकली आप कोई भी शो कर सकते हो। ठीक है, आप बी ट्री को भी कोई भी एग्जाम्पल आपको करना हो ना, विद एग्जाम्पल आप छोटा सा एग्जाम्पल 1 2 6 तक नंबर लो, चाहे एवियल ट्री करो, बी ट्री करो, चाहे आपने बी ट्री करना है, कोई भी ट्री बना के दिखा सकते हो। ओके, यस, नेक्स्ट इज द डबल ए ट्री। लास्ट आपका ट्री है इसमें डबल ए ट्री, एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेड ब्लैक ट्री। ओके, आई थिंक ये पता नहीं आपका है या नहीं सिलेबस में। एमसी वाले और जो बीसीएमसी के बच्चे उनका तो होता है। ओके, यस, एनी डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट इज अ डबल ए ट्री। ओके, अब देखिए डबल ए ट्री क्या होता है? बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्रीज। Balanced binary search trees, BST of n nodes is balanced. Okay, a balanced tree
Efficient operation, since most operations only have to traverse one or two root to leaf paths. There are many implementations of balanced BST, including able tree, red black trees, and double A trees. Okay, we have covered all the particular points. Okay, these particular balanced BSTs. Okay, able tree is balanced tree, red black tree also balanced tree, and this is also a balanced tree. Okay, AA tree. These are properties of double A tree. Satisfy the properties of red black tree. All the properties. Just you have to add one thing plus one more. Every node is colored either red or black. The root is black. Okay, if a node is red, both of its children are black. Okay, and every part from node to a leaf reference has the same number of black nodes. Okay, this is a particular just, yes, this is a particular point, last point. ओके ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट था आपका लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आपका रेड ब्लैक ट्री का पॉइंट नहीं है, ठीक है। जस्ट दिस इज ऑल द पॉइंट्स आर देयर, सेम पर्टिकुलर पॉइंट्स आपके पास है, ठीक है। बट आपका लास्ट क्या है, लेफ्ट चिल्ड्रन मे नॉट बी रेड, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो आपका लेफ्ट चिल्ड्रन है ना वो रेड नहीं हो सकता, ठीक है। दीज आर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज द यस लिंक्स इन ए डबल ए ट्री। आपका पेपर में क्रिएशन नहीं आएगा, ओके ये जो पर्टिकुलर ट्री है डबल ए ट्री का कोई क्रिएशन नहीं आता, जस्ट ए शॉर्ट नॉट। व्हाट इज ए ट्री, ओके राइट ए शॉर्ट नॉट ऑन डबल ए ट्री, ओके। Links in a double A tree. A horizontal link is a connection between a node and a child with equal levels. Okay, horizontal links are right references. Okay, देखो अब इसके अंदर आपको मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ. This is the example, ठीक है. Horizontal link means this is a particular horizontal link. Horizontal link means right references. Okay, this is a particular 70 element. 70 element is a right position. Okay, but we can't set this is the left side. Okay, this is a particular left में आप कोई insert link नहीं बना सकते. Right में just you have to set this particular link. Okay, जैसे हर particular node का आपके पास जो link होता है वो right reference को generate करता है. Right means और जो horizontal link है, horizontal link means right references. Okay, horizontal link is a connection between a node and a child with equal levels. Horizontal links are right references. Okay, there can't be two consecutive horizontal links. ठीक है, आपके पास जो पर्टिकुलर लिंक है ना वो कंसेक्यूटिव लिंक नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो आपके पास ठीक है, यस देखिए आपके पास जो पर्टिकुलर डोंट डिस्टर्ब, आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर जो नोड्स है ना ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, टू कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लिंक नहीं हो सकते, ठीक है। कंसेक्यूटिव लिंक समझते हो क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर लिंक आपके साथ साथ जो लिंक होते हैं। अब सपोज करो एक जो पर्टिकुलर लिंक है, जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे लिंक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, एक और आपने लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 63, ठीक है, बट वी कांट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, ओके। आप इस पर्टिकुलर प्लेस में ऐसे राइट नहीं दे सकते। दिस इज ए पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। हैव यू गॉट दिस इज दीज आर पर्टिकुलर लिंक्स। कैसे कैसे आप पर्टिकुलर लिंक क्रिएट करोगे, ओके। एंड नेक्स्ट इज these particular terms. First is a skew and second is a split, okay। देखो पेपर में आपका डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस बिटवीन स्क्यू एंड स्प्लिट, ओके। आपके पास पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन स्क्यू एंड स्प्लिट, या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ओके।
क्रिएशन नहीं आएगा पेपर में इसका, ठीक है। स्क्यू मीन्स क्या होता है, रिमूव लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लिंक्स, ठीक है। आपने क्या करना है इसके अंदर, वन से यस यस। स्क्यू मीन्स क्या होता है, रिमूव लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लिंक्स, ओके। अब सपोज के दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, दिस इज एरो, आपके पास यहाँ पे एरो क्या डिनोट कर रहा है, यस आप मुझे बताएंगे ये एरो किस साइड, आपका जो एरो है ये, दिस इज ए पर्टिकुलर नोड, ओके, एंड दिस इज ए पर्टिकुलर लेफ्ट रेफरेंस, बट वी कांट रिमूव दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लिंक, लेफ्ट में कोई हॉरिजॉन्टल लिंक हम इंसर्ट नहीं कर सकते, दिस इज ए पर्टिकुलर राइट रेफरेंस, ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्क्यू, रिमूव लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लिंक्स, आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ये आपके पास लेफ्ट में है तो इसको आपने इसको राइट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ये राइट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिमूव लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लिंक्स आपने कन्वर्ट कर दिया राइट साइड में, ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो नोड जिसकी है वो एज इट इज रहती है। नेक्स्ट इज अ स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या होता है, रिमूव कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लिंक्स, मैंने अभी आपको पॉइंट बताया था, कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, साथ साथ जो पर्टिकुलर नोड राइट रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो नहीं हो सकते, यू हैव टू स्प्लिट, आपने इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट जैसे आप कन्वर्ट कर दोगे, जस्ट यू हैव टू स्प्लिट दिस पर्टिकुलर, दिस इज अ पेरेंट नोड, जस्ट यू हैव टू सेट इन अपर साइड, ठीक है, आप इसको पेरेंट में कन्वर्ट करोगे एंड जस्ट यू हैव टू सेट दिस पर्टिकुलर एक्स एंड जी नोड को आपने सेट करना, लेफ्ट में और राइट में सेट करना, ठीक है। तो ये आपने ये पर्टिकुलर स्टेप क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लिंक्स का, जो साथ साथ आपके हॉरिजॉन्टल लिंक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आपका पेपर में इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है वो सब टर्म्स आती हैं, ठीक है। जस्ट आई हैव कवर्ड जस्ट ब्रीफ अबाउट डबल ए ट्री, ठीक है, जो पर्टिकुलर आपके पास मैंने आपको बताया स्प्ले ट्री, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री, ये सब आपको क्रिएशन में भी आ सकते हैं, बट आपको इसके अंदर यूज करनी है रोटेशंस आल्सो, जो पर्टिकुलर टर्म्स मैंने रूल्स रेगुलेशंस बताए उसके अकॉर्डिंग जस्ट यू हैव टू क्रिएट ऑल द पर्टिकुलर ट्रीज, ठीक है। We have covered 7 types of trees. Any doubt? Any query from any side? सबको सब कुछ क्लियर हो गया, क्या कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, No doubts. वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओके, यस प्लीज अटेंडेंस मार्क करनी मुझे आप सबकी, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो फास्ट, मनीषा, अंजलि, अंजलि अच्छा 2 अंजलि रखी है यहाँ पे, नितेश, प्रशांत, everyone please switch on your video fast, अभी वीडियो ऑन नहीं है सबका, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ओके वेरी गुड, ओके वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ।
Graph is also very, very important. Yes, a graph. A graph G is a collection of two sets, V and E, where V is a collection of vertices, also called nodes, and E is a collection of edges, okay, where edge is an arc which connects two nodes. Okay, edge क्या है basically? Edge is an arc, okay, which connects two particular nodes. Okay, this can be represented as G equal to, मतलब graph equal to V into V comma E, vertices and edges. Okay, yes, this is a particular graph. Okay, yes, 1, 2, 3, 4, 5. We have total 5 nodes. And how many edges are there? Yes, टोटल एजेस कितनी है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ओके दीज आर एजेस एजेस मीन जो लाइन है ठीक है ये जो पर्टिकुलर लाइन है दिस इज एज ओके एंड दीज 6 आपके पास एजेस हैं एंड 5 आपके पास क्या है नोड्स हैं देखो 1 2 3 4 5 6 5 नोड्स हैं ठीक है ग्राफ कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेसिकली ग्राफ जो है आपका टू टाइप्स का है फर्स्ट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ ओके अनडायरेक्टेड मीन्स देयर इज नो एनी डायरेक्शन ओके देयर इज नो एनी डायरेक्शन गिवन a graph which has or unordered pair of vertices is called undirected graph okay we have total vertices 4 okay 1 2 3 4 these are particular vertices okay we have edges कितनी है 1 2 3 4 5 6 ठीक है आपके पास टोटल 6 एजेस हैं अब देखिए आपके पास अकॉर्डिंगली जस्ट आपके पास अनऑर्डर अनडायरेक्टेड का मीनिंग क्या होता है देयर इज नो एनी डायरेक्शन ओके नो एनी डायरेक्शन सो वी कैन मूव फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 1 ओके हम कहीं जा रहे होते हैं अगर आपने मान लो कहीं कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है ओके नो एनी डायरेक्शन गिवन देन क्या होता है रोड आपकी सीधी जा रही है और हमें कोई पता नहीं दो रास्ते जा रहे हैं ना इधर का ना इधर का हमें कुछ नहीं पता तो हम कहीं से कहीं पर भी मूव कर जाते हैं रॉन्ग डायरेक्शन में भी कोई पता ही नहीं कहां से रास्ता जा रहा है ना तो वी कैन मूव फ्रॉम 2 to 1 आल्सो 1 to 3 3 to 1 4 to 1 1 to 4 हम कहीं से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं देयर इज नो एनी डायरेक्शन गिवन ओके दिस इज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ ओके नेक्स्ट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ we can also call diagraph okay a directed graph or diagraph is a graph which has ordered pair of vertices in this type of graph each edge has direction एक जो पर्टिकुलर एज है ना उसके अंदर आपके पास डायरेक्शन है ओके मींस v1 to v2 ओके अगर v1 से डायरेक्शन आपकी v2 पे जा रही है तो सिर्फ वही एज आपकी डायरेक्शन में आएगी अगर v2 से 1 करोगे ना तो रॉन्ग होगा वो डिफरेंट आपके पास रिप्रेजेंट करेगी ठीक है तो देखो आपके पास यहाँ पे एरो गिवन होता है वी हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राफ वी विल मूव ऑन 1 to 2 ओनली वी कांट मूव 2 to 1 ओके दिस इज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जस्ट आप डायरेक्शन टू वर्ड्स के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे ओके 2 to 3 4 to 3 4 to 5 ओके अब इसके अंदर आपके पास क्या है एडजेसेंट समझते हो व्हाट इज द एडजेसेंट एडजेसेंट का मीनिंग अगर मैं यहाँ बात करूं कि C3 का एडजेसेंट नोड्स बताओ प्लीज टेल मी द एडजेसेंट नोड्स ऑफ 3 2 5 4 4 5 2 2 4 5 okay these are particular adjacent nodes okay this is also undirected graph okay ये भी आपका अनडायरेक्टेड ही है कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है ठीक है अब देखो जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड होता है ठीक है इनवर्ड का मीनिंग क्या अंदर अंदर को जा रहे हो और आउट का मतलब इसमें से कौन सी आपके पास क्या है आउटवर्ड्स है अगर मैं करूं इसमें 2 की इनवर्ड एंड आउटवर्ड कौन सी है
बताइए। 1 is Inward, inward 1. and 3 is Outward, यस, 3. 1 जो आपकी नोड है वो अंदर को जा रही है, तो इसमें इनवर्ड्स हो गई, और इसमें से आउट हो रही है आपकी 3 नोड। ओके, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। एडजेसेंट नोड्स का मीनिंग क्या होता है? जो पर्टिकुलर डायरेक्ट कनेक्शन में आती है। जैसे आपकी 1 भी एडजेसेंट नोड है, 3 भी एडजेसेंट नोड है। 4 की एडजेसेंट नोड 1, 5, 3। ओके, 4 का 2 से कोई कनेक्शन नहीं, दिस इज नॉट एडजेसेंट नोड। ओके, क्लियर पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स क्लियर? Directed and undirected graph, this is a very important question. Okay, next is a weighted graph. Basically we have two particular graphs, undirected and directed. These are other particular graphs. Weighted graph, a graph is said to be weighted if its edge have been assigned some weight. Okay, edge, you know what is edge? This is a particular edge. ओके, अब देखो एज का जो पर्टिकुलर मैंने आपको पॉइंट बताया, आप यहां से आपके पास क्या है? थ्री पर्टिकुलर नोड। अब मेरे को 3 पर्टिकुलर नोड पे आना है। आप यहां से भी आ सकते हो, यहां से भी आ सकते हो, यहां से भी आ सकते हो। ठीक है, वेटेड का मीनिंग क्या है कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्टेशन पे मूव करना है। आपके पास वेज बहुत सारे हैं, वी हैव डिफरेंट वेज। ओके, बट आप शॉर्टकट निकालते हो कि हम शॉर्टकट में से और हमारी कॉस्ट कम लगे, ठीक है, उस वे से आप पहुंचते हो। तो उसके पास इसका मीनिंग क्या होता है? वो होता है वेटेड ग्राफ। आप यहां से इस पर्टिकुलर नोड पे आपने जंप किया, तो आपको कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? कॉस्ट 5। ये पर्टिकुलर जो कॉस्ट है आपको 5 दे रही है, क्यों? आपने यहाँ पे मूव करना है, और ये आपको 2 पे आके लेके आ रही है, और यहाँ से आप आ रहे हो तो 8 कॉस्ट पड़ रही है। तो जस्ट आप मूव करोगे दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, दिस इज ए पर्टिकुलर वेटेड ग्राफ। एक वेटेज गिवन होती है, आप किसी स्टेशन पे जा रहे हो, वेटेज गिवन है कि आप इधर से इधर जाओगे तो आपको कॉस्ट कम लगती है। ठीक है, एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट नोड क्लियर हो गया? जो पर्टिकुलर ए नोड इज एडजेसेंट टू अनदर नोड और इज ए नेबर ऑफ अनदर नोड। ठीक है, साइक्लिक ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ का मीनिंग क्या होता है? ए ग्राफ दैट हैज साइकिल्स इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्राफ। ओके, एक जो पर्टिकुलर आपका जो ग्राफ है साइक्लिक, साइक्लिक मींस क्लोज, टोटली क्लोज है आपका वो ग्राफ। दिस इज अ पर्टिकुलर क्या होगा? दिस इज ए पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ साइक्लिक। ठीक है, अब देखो घूम फिर के आप 1 से चले, 1 जैसे आप यहाँ से आए, यहाँ से आए, इधर से आए, इधर से आए, घूम फिर के वहीं पहुंच गए, वो हमारा क्या होगा? साइक्लिक ग्राफ। ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है? पूरा लूप होता है, क्लोज फॉर्म में होती है। एक होता है ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है? देयर इज नो लूप, नो साइकिल। ओके, अंडर मतलब कि क्या आपके पास कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वो आपका क्या होगा? ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ। क्लियर? Unconnected graph. Unconnected means a graph is called unconnected if there is no path exists from any vertex to any other vertex. अब देखिए आपके पास क्या है? कंप्लीट आपका ग्राफ तो है, बट आपके पास 6, 7 और 8 नोड जो है वो आपकी क्या है? अनकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ तक 5 तक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका 6, 7, 8 ये अनकनेक्टेड है, और ये पर्टिकुलर आपका इससे भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्या होती है? अनकनेक्टेड ग्राफ होता है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड वीकली कनेक्टेड ग्राफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ एंड वीकली कनेक्टेड ग्राफ? ओके, strongly connected means a graph is called strongly connected if there is a directed path from any vertex to any other vertex. डायरेक्टली पास, स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मेट्रो स्टेशन के अंदर आपके पास एक जो स्टेशन ऐसा होता है ना, स्ट्रांगली होता है, स्ट्रांग है। अब वहां पे जो जाओगे तो वहां से आपको हर पर्टिकुलर की क्या होंगी? पर्टिकुलर आपको मेट्रोज मिल जाएंगी, अदर और मेट्रोज आपको करनी है। ठीक है, तो वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ऐसे स्टेशन होते हैं वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर का सपोज दिस इज एग्जांपल, लाइक आपने 1 से 2 पे गए। ओके, 2 का मीनिंग बेसिकली क्या होता है? स्टेशंस हैं हमारे, ये नोड्स हैं। नोड्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? स्टेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, एंड 2 से आप 3 पे मूव किया। ठीक है, आप 3 से 4 पे मूव कर रहे हो, 4 से 5 पे मूव किया। ठीक है, अब में फिर से आप यहाँ से जा रहे हो, तो आप डायरेक्टली आप अगेन वी विल मूव, वी कैन मूव फ्रॉम 2 1।
1 से आप फिर से दोबारा से आपका चेन चलेगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। तो स्ट्रांगली कनेक्टेड हुआ कि पूरा का पूरा ग्राफ आपका क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है। कोई ऐसी वर्टिसेस नहीं है जो पर्टिकुलर हम जिस पे विजिट ना कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, वीकली कनेक्टेड ग्राफ। अब वीकली कनेक्टेड मींस क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर स्टेशन ऐसा होता है वीक होता है, ठीक है, आप वहां पे पहुंच तो गए बट वहां से निकल नहीं पा रहे, ओके, अदर पर्टिकुलर कनेक्शंस नहीं है, वी कांट मूव, okay, this is a particular weakly connected graph if no directed path exists from any vertex to any other vertex, okay, then it is called a weakly connected graph. Suppose this is a particular weakly example of weakly connected graph, okay, yes, first is a 1 to 2, okay, we can move from 1 to 2, 2 to 3, okay, 3 to 5 also, okay, but we can't move this particular place, okay, this is a particular weak, this node is weak, okay, this particular node weak means it show the no connection, हम यहाँ से कोई पर्टिकुलर मूव नहीं कर, सो दिस इज ए पर्टिकुलर वीकली कनेक्टेड ग्राफ। आप 3 से 5 पे तो पहुंच गए बट आप 4 से 5 पे जा रहे हो, बट 4 पे तो जा ही नहीं पा रहे हो, किसी भी एरो ही मेंशन नहीं है, तो वो क्या होता है आपका वीकली कनेक्टेड ग्राफ, ओके। एरो मींस क्या होता है, जो पर्टिकुलर एरो आपके पास रिप्रेजेंट करता है कि आप उसके पास जा रहे हो, उस नोड पे विजिट कर रहे हो, बट इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है ना, तो ये क्या आता है वीकली। जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू मेंशन द एग्जांपल आल्सो, ओके, यू हैव टू मेंशन द एग्जांपल, वीकली कनेक्टेड का एग्जांपल आपको शो करके बताना है, और इसके अंदर आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड का आपको मार्क्स इसके अंदर अच्छे मिलेंगे विद डायग्राम आप क्रिएट करोगे, ठीक है। Yes. Have you noted all the particular points? Any doubt? Yes. किसी पर्टिकुलर टर्म में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई पर्टिकुलर टर्म आपको ना क्लियर हुआ हो, प्लीज आंसर किया करो यार, कोई आंसर ही नहीं करते हो आप लोग। नो डाउट। No, ma'am. No doubts. मुझे लगता है सो जाते हो, अभी तो सोने का टाइम ही नहीं हुआ। नेक्स्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। Representation of graph, this is also very important. There are two ways for representing the graph in computer memory. First is the adjacency matrix and second is the adjacency list. Adjacency matrix and list, okay, please note it down. Adjacency matrix क्या होती है और लिस्ट क्या होती है, ठीक है, क्या होती है। Adjacency matrix is a matrix that which keeps the information of node, okay, just in a matrix form। आपको क्या करना है सर, दिस इज एग्जांपल, यस दिस इज एग्जांपल, जैसे सपोज कि दिस इज ए पर्टिकुलर 1 1 2 3 4, आपको बोथ द साइड्स एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, जस्ट यू हैव टू पुट ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स है नोड्स पे, ओके, लेफ्ट और राइट में दोनों में मेंशन करना है रोज एंड कॉलम्स। आफ्टर दैट 1 एक पर्टिकुलर नोड क्या है आपकी 1 का 1 से कोई कनेक्शन नहीं है, यू हैव टू पुट ए 0, okay, direct connections के accordingly just you have to set the particular adjacent node, this is a particular adjacent node 2, okay, this is a particular adjacent node and this is also adjacent node, okay, 1 की adjacent node 2 3 4 and you have to mention 1 1 1, जो जिसकी adjacent नहीं है आपको क्या करना है 0 रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। 0 मीन्स क्या है, नो एडजेसेंट, ओके, जो पर्टिकुलर उसकी एडजेसेंट नहीं है नोड, बट जैसे ही आप यहाँ पे एडजेसेंट नोड है तो आपको उसके अंदर मेंशन करना है 1 1 का मीनिंग क्या है एडजेसेंट, क्लियर। अब एग्जांपल मेरे को इसके अंदर इसका बताइए,
यस, अब मेरे को इसका एग्जांपल बताइए कैसे करोगे। बताइए, बनाइए आप इसके अंदर मैट्रिक्स। हेलो राहुल। हाँ जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैं कह रही थी तुमने मेरे को क्लास का लिंक। यस, आपने मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करना है आपने, कैसे किया क्रिएट, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल Ma'am, जस्ट यू हैव टू मेंशन ऑल द पर्टिकुलर नोड्स। Okay, just you have to mention 1 2 3 4 5. Okay, and same just you have to mention 1 2 3 4 and 5. ठीक है। यस, एडजेसेंट 1 की एडजेसेंट नोड कौन कौन सी है आपकी, 2 एंड 5। ओके, 1 की 1 का 1 से कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट यू हैव टू पुट 0। ओके, 1 की एडजेसेंट नोड क्या है आपकी, 2, यू हैव टू मेंशन 1 एंड 5। ठीक है। अब देखिए 1 का 3 से कोई कनेक्शन नहीं है, 1 का 4 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू मेंशन 0 0। ओके, सेम जस्ट आपने 2 के कनेक्शन सेट करने हैं। क्लियर हुआ ये पर्टिकुलर पॉइंट? yes, ma'am. ओके, अब देखिए 2 के एडजेसेंट नोड में आपकी जो 2 की एडजेसेंट नोड इज 1। ओके, 1 एंड 3, 1 एंड 3 एडजेसेंट नोड है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 0 0 और 0। 2 नहीं, उल्टा हो गया, 2 का 1 से कनेक्शन, 2 का 3 से कनेक्शन है। यस,
ठीक है, ओके। एंड सेम जस्ट यू हैव टू अप्लाई 3 4 5, कर सकते हो ना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। कंप्लीट हो गया एडजेसेंसी लिस्ट। मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ एडजेसेंसी लिस्ट, ओके। इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी स्टोर ए ग्राफ एज ए लिंक्ड स्ट्रक्चर, ओके। लिंक्ड स्ट्रक्चर मींस जो पर्टिकुलर एडजेसेंट नोड है ना, आपने लिंक लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वी स्टोर ऑल द वर्टिसेस इन ए लिस्ट and then for each vertex we have a linked list of its adjacent vertices, okay. You have to mention the link, yes। अब देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे वर्टेक्स 1, यू हैव टू मेंशन वर्टेक्स 1। वर्टेक्स 1 के कनेक्शन में क्या आता है? 2 3 4। लास्ट नोड में जस्ट यू हैव टू पुट 0 और नल, ओके। अब ये एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे 1 के साथ एडजेसेंट नोड में कौन कौन सी आती हैं? 2 3 एंड 4। आपको यहाँ पे लिंक लिस्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ग्राफ का, यस, आपने इसका मैट्रिक्स क्रिएट किया, इसी का अगर आपने लिंक लिस्ट क्रिएट करना हो तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू मेंशन वर्टेक्स 1। वर्टेक्स 1 आप यहाँ मेंशन करोगे, वर्टेक्स 1 नोड। अब वर्टेक्स 1 के कनेक्शंस में कौन कौन सी नोड आती है? 1, ठीक है। आपके वर्टेक्स 1 के कनेक्शन में कौन कौन सी आती है? 2। जस्ट यू हैव टू मेंशन 1 की एडजेसेंट कनेक्शंस में शो करना है 1 2 और 5, ठीक है। आपकी 2 एंड 5 है तो लास्ट में यू हैव टू मेंशन नल इन लिंक लिस्ट फॉर्मेट। दिस इज ए लिंक लिस्ट फॉर्मेट वर्टेक्स 1 एंड नेक्स्ट इज ए वर्टेक्स 2। अब वर्टेक्स 2 के कनेक्शंस में कौन कौन सी नोड आती है आपने शो करना है। वर्टेक्स 2 के आपके पास कनेक्शंस में कौन कौन सी आती है? आपके पास 3 नोड, ओके। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नोड और 3 नोड, 1 and 3, and last you have to mention null, okay। and same just you have to apply the node vertex 3। vertex 3 में आपके पास कनेक्शन में कौन सी आती है? 2 5 4। 2 4 5, okay, yes, yes, okay। this is a representation of graph। next is a traversal of a graph। traversal means just we have covered in a tree traversal, है ना। traversal of a tree, we have done this particular topic। how many traversal are there in a tree? yes, Ma'am, 3. which one? Pre-order, in order, and post order. very good, pre-order, in order and post order, very good, okay। traversal of a graph, there are two particular terms। first is depth first search and second is the breadth first search, okay। this is a very important, ओके। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च का आपका एल्गोरिथम आ सकता है पेपर में, ओके। और ब्रेथ फर्स्ट, इन दोनों का एल्गोरिथम आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड क्रिएशन आ सकता है। हाउ टू क्रिएट, एक आपका एग्जांपल गिवन होगा और जस्ट यू हैव टू फाइंड डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको फाइंड करना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है? वी प्रोसेस ऑल ऑफ वर्टेक्स डिस्टेंडेंट्स बिफोर वी मूव इन एडजेसेंट वर्टेक्स, ओके। डेप्थ का मीनिंग क्या होता है? जो पर्टिकुलर नोड की जितनी डेप्थ में जाओगे, ठीक है, यू हैव टू प्रोसेस, ओके। द डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ ए graph starts by processing the first vertex of a graph। after processing the first vertex we select any vertex adjacent to the first vertex, okay, adjacent, okay, and process it। we process each vertex until we visit all the particular nodes, okay। this is a particular depth first search and this is example, okay। depth first search में just आपके पास ग्राफ गिवन होगा और just you have to find the depth, okay। अब आपको फाइंड करनी है डेप्थ।
This is a particular root node. V1 is a root node and three particular adjacent nodes. These are particular V1, V3 and V8. देखो V2 नोड है, V3 नोड है एंड V8 नोड है. ठीक है, V8 काम ले रहा है. देखो ये जो पर्टिकुलर आपका V8 नोड है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू विजिट फर्स्ट नोड. V2 पे आप विजिट करोगे. ठीक है, V2 से विजिट करने के बाद आपने V3 और V8 पे विजिट नहीं करना. दिस इज अ पर्टिकुलर डेप्थ. डेप्थ का मीनिंग आपने डीपली जाना. ओके, डिसेंडेंट्स. ओके, नॉट पर्टिकुलर आपने ब्रेथ के अकॉर्डिंगली मूव नहीं करना है. आप कहाँ पे मूव करोगे? V4 पे. ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे V4 और V5 गिवन है. जस्ट मूव ऑन V4 नोड. आफ्टर दैट यू विल मूव ऑन V8. जब आप V8 पे आए तो V8 में आपके पास क्या है? वी हैव वेरियस पार्ट्स. आप मूव कर सकते हो. V5 पे जा सकते हो, V1 पे जा सकते हो, V6 पे, V7 पे, है ना. तो V8 पे मूव करने के बाद आप कहाँ पे मूव करोगे? V5 पे. दिस इज ए अनविजिटेड नोड. ओके, V5 पे आने के बाद आप कहाँ मूव करोगे? अगेन visit on, revisit on, you have to mention revisit on V2 node. फिर V1 पे जाओगे. ठीक है, फिर वहां से आने के बाद आपको विजिट करना V3, V6, अगेन revisit on V8 and V7. ओके, दिस इज ए डेप्थ फर्स्ट सर्च. सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस, दिस इज ए एल्गोरिथम. ये आपका एक एल्गोरिथम है. ठीक है, एल्गो किसका है? ये डेप्थ फर्स्ट सर्च का. अब देखिए इसके अंदर आपका वाइवा का क्वेश्चन क्या है? डेप्थ जो आपका एल्गो, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉलो किसको करता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च किसको फॉलो करता है? दो चीजें पर्टिकुलर होती हैं, स्टैक एंड क्यूज. ओके, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो स्टैक को फॉलो करता है. ठीक है, और जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो क्यू को फॉलो करता है. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज एग्जांपल. दिस इज ए एल्गोरिथम. दिस इज ए वेरी सिंपल एल्गोरिथम ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च. Okay, first step is define a stack of size total number of vertices in a graph. Okay, just you have to mention a particular stack. Okay, total number of vertices. Next is a select any vertex as starting point for traversal. This is a traversal. Okay, just you have to display all the particular nodes. You have to mention visit that vertex and push it onto the stack. Okay, step number 3, visit any vertex. Visit any one of adjacent vertex of the vertex which is at the top of the stack, which is not visited, and push it onto the stack. Okay, and step 4, repeat step 3 until there are no new vertex to be visited from the vertex on to top of the stack. Then next is a when there is no new node vertex to be visited, then use backtrack. Okay, backtrack means when we move a particular node again revisit on. Okay, तो आपको कोई नोड नहीं मिल रही है, नई नोड, तो आपको backtrack यूज करना होता है. ठीक है, repeat this particular step 3, 4 and 5 until stack becomes empty. Stack के accordingly वर्क करता है. Stack is a LIFO operation, last in first out. Same, just you have to follow all the particular terms. This is a depth first search. Next is a breadth first search. Breadth first search means we first visit all the adjacent vertices or the start vertex, then visit unvisited vertices adjacent to these nodes. Okay, आपको क्या करना है इसके अंदर? एडजेसेंट नोड जो होंगे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, आपने एडजस्ट, पहले हमने किस पर गए थे? डिसेंडेंट्स पे, अपने आगे वालों पे जा रहे थे. ओके, अब आपने जितने भी एडजेसेंट है ना उसके साथ में आपने उनको विजिट करना, एक वर्टेक्स के एडजेसेंट्स. ओके, यस, दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS. अब मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगी इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू मेंशन डिफाइन ए क्यू. इसमें आपको क्यू को फॉलो करते हैं, उसमें हम किसको करते हैं? स्टैक को फॉलो करते हैं. डिफाइन ए क्यू ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ. सेलेक्ट एनी वर्टेक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रैवर्सल. विजिट दैट वर्टेक्स
and insert it onto the queue. Visit all adjacent vertices of the vertex which is at front of the queue. Which is not visited, insert them into the queue. Okay, step number 4. When there is no new vertex to be visited from the vertex at the front of the queue, then delete that vertex from the queue. Repeat होंगे steps और उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनल ट्री क्रिएट करना है। अब देखिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल शो किया, ठीक है, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, इस पर्टिकुलर का मेरे को अब डेप्थ फर्स्ट सर्च तो निकाल लिया आप लोगों ने। क्या निकालना है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ का मीनिंग आपने क्या करना है? विड्थ वाइज, जस्ट यू हैव टू मूव द विड्थ वाइज। आपने सबसे पहले, दिस इज ए पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, V1 इज ए पर्टिकुलर नोड, V1 की अब एडजेसेंट नोड कौन सी है? V2। आप V2 को विजिट करोगे, ठीक है। अब V2 की साथ में आपके नोड कौन कौन सी है विड्थ वाइज, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इसकी V8 है और V3 है, ठीक है। तो आपने विजिट करना है V1, V2 और V3 और V8 डायरेक्ट कनेक्शन में आती है, ठीक है। अब आपने V2 के आपने एडजेसेंट नोड को चेक करना है। V2 के आपके पास क्या है? फर्दर V4 एंड V5, ठीक है। आपने विजिट करना है V4 एंड V5 नोड को, और V3 की एडजेसेंट नोड आपके पास क्या है? V6 एंड V7, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर आपके पास क्या होगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सबको क्लियर होगा? दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या डिफरेंस है? यस मैम एक बार ब्रेथ फॉर सर्च प्लीज रिपीट कर दीजिए। एक सेकंड, क्या कह रहे हो बच्चे आप? मैम ब्रेथ ऑफ सर्च प्लीज रिपीट कर दीजिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अंजलि प्लीज। हाँ, मुझे बताइए बच्चे, क्या कह रहे हो आप? आप उसमें चैट में लिख के सेंड करो। यस अंजलि। ओके, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को रिपीट करना है, ओके। और मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखा रही हूँ इसी का। देखो, मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। आपके पास फर्स्ट नोड है A, ओके, एंड सेकेंड नोड इज B, and this is a particular C node, and this is a particular D node, and same just we have another nodes, another adjacent nodes, okay, E, F, G, H, I and J, okay। डेप्थ का मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी पर्टिकुलर क्रिएट डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मूव ऑन रूट पॉइंट, फ्रॉम मूव पॉइंट टू आपने क्या करना है? A टू B पे मूव करोगे, B से आपने कहाँ पे जाना है? E पे जाना है, ठीक है। रीविजिट ऑन, डायरेक्टली आप इस पे तो नहीं जा सकते, ओके। रीविजिट ऑन B एंड मूव ऑन F, ठीक है। आफ्टर दैट आपने कहाँ पे जाना है? A पे जाना है, A से आप C पे जाओगे, फिर C से G पे जाओगे, ठीक है, फिर आप जाओगे, फिर इसके अंदर ये करो, ठीक है। तो आपका जो स्टेप मेंशन होगा, फर्स्ट जब डेप्थ फर्स्ट सर्च में करते हो तो A पहले जाओगे B पे, B के बाद आपने कहाँ पे जाना है? E पे, E से जाने के बाद आप दोबारा से नहीं लिखते पर्टिकुलर नोड को,
आप विजिट तो करते हो पर बार बार हमें मेंशन नहीं करते। आपका जो आउटपुट आएगा ABEF, ओके। आफ्टर दैट C नोड GHDIJ, ये बनेगा आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मीनिंग क्या होता है कि आपने विड्थ वाइज मूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू मूव ए, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड आफ्टर दैट आपने विजिट करना है बी नोड को, ओके। अब आपने बी पे विजिट कर लिया, बी पे जब विजिट करो, क्योंकि ए का तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही नहीं है ना, ये तो आपका रूट पॉइंट है, ओके। तो आपने इसके मूव किया, तो आप यहाँ से इन तीनों पे विजिट करोगे, इनकी एडिट करना है आपने, ठीक है। जब आप बी सी डी को विजिट करोगे, आफ्टर दैट जस्ट यू हैव टू मूव फ्रॉम बी की, आपने इसके अंदर आपके एड्रेस एंड नोड चेक करनी है। बी के आपके पास एड्रेस एंड नोड के अकॉर्डिंगली ई एंड एफ, यहाँ पे आपके पास आएगा ई एफ। जब ये कवर हो गया, आफ्टर दैट सी के आप चेक करोगे कनेक्शंस, ठीक है। अब सी की एड्रेस एंड नोड कौन सी है, सी के डायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं, एच, जी एन एच, ओके। एंड सेम जस्ट टू हैव टू ऐड डी पर्टिकुलर नोड, डी के आपके पास बच्चे, हेलो हेलो, माय वॉइस इज नॉट कमिंग, Yes, ma'am. हेलो। Ma'am, it was lagging a कोई bit. आंसर ही नहीं है अंजलि, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, अब मुझे आप Yes, क्रिएट ma'am. करके दिखाइए, Sure, ओके। ma'am. अब एग्जाम्पल देखिएगा, क्यों पेपर में आपका बिल्कुल सिंपल नहीं आता। अब ये वाला एग्जाम्पल आप करो एक बार, इसी का आपको डीएफएस, Ma'am, in this यस graph, what फाइंड will कर be सकते the हो, starting point? यस। स्टार्टिंग बी इज ए नॉट स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज ए रूट नोड, Okay, ma'am. Ma'am, after H, where should we go? To E. yes, E is a particular last node, E is a last node, no, E last node नहीं है आपकी, ओके। देखो दिस इज ए पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। जस्ट वी हैव टू फाइंड डीएफएस, ट्रेवर्सल जस्ट आपको फाइंड करना है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ओके। डेप्थ मींस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज a particular root node, A is a root node and this is a particular adjacent node is B, NS, okay. First of all we will visit on B node, okay. B की further depth there is no any depth, okay. This is a particular point. First of all just you have to set A node, A के बाद after that you have to insert B node, okay. After that S is a particular another particular adjacent same particular node, you have to add this particular S. After that we have C node and G node, okay. Just we have to cover C. Why C? Because this is a short
short than G, you have to mention C naught. Okay. After that, C is another depth. Okay. You have to mention D particular point. You have to mention C, after that D. Okay. D की कोई further depth नहीं है. No any depth. Just you have to mention the backtrack on C particular node. Okay. And next node is E node. Okay. E के बाद आपका F आता है, तो first of all just you have to visit on E node. Okay. After that H node, G, and after last is an F node. Okay. Just to move this particular point, this node and this node. Okay. This is a particular DFS. देखो DFS में आपका आउटपुट ऐसे आएगा. अगर पेपर में क्वेश्चन यू हैव टू स्टेप डिफाइन ऑल द पर्टिकुलर टर्म्स स्टेप बाय स्टेप. ऐसे नहीं कि एक सीधा आउटपुट आप शो कर दोगे. ये तो लास्ट है. दिस इज अ पर्टिकुलर लास्ट स्टेप. Okay, you have to put all the particular points output, but you have to mention each and every thing defined in a clear way. First of all, we will visit on A node. Okay, this is a particular root node. There are two particular adjacent nodes B and S. You have to visit on B node. Okay, same, just you have to apply all the particular trees में भी ऐसा ही करोगे. Okay, अब देखिए मुझे इसका BFS फाइंड करना है. BFS मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंगली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट ऑन A node. Okay, A node has two particular adjacent nodes. Two childs are there, B and S. You have to mention, first of all, you have to mention A particular node, A, after that B and S node. Okay, adjacent nodes आपको इसके अंदर फाइंड करनी है. अब B की कोई adjacent node ही नहीं है. आफ्टर दैट आपने S की adjacent node फाइंड करनी है. S की adjacent node कौन सी है? C and G. ठीक है, आपकी इसके अंदर एडजेसेंट नोड C and G आपकी है, तो जस्ट यू हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर प्लेस C and G. ठीक है, आफ्टर दैट C की एडजेसेंट नोड में आपकी D E F. यू हैव टू मेंशन D E F. ओके, D E F. अब इसके बाद आपके पास G की एडजेसेंट नोड में आपके पास क्या आती है? ओनली H नोड. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर breadth first search. ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके, अब तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिए इसके, है ना? Yes, ma'am. यस. चलिए अब आगे मूव करते हैं. मैंने आपको भी क्या बताया? ट्रैवर्सल. ओके, विच टॉपिक वी हैव कवर्ड? यस, टुडे वी हैव कवर्ड विच टॉपिक्स? No idea. No any idea. Anjali? Ma'am, zigzag rotations, straight tree, traversal of graph. We have covered 4 types of trees today. Okay, and graphs. ग्राफ में मैंने आपको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन और इसमें आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ ग्राफ बताया. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने कवर किए. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन स्पैनिंग ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ एंड स्पैनिंग ट्री. ओके, yes, shortest path algorithm, we can say algorithm. Okay, यहाँ तक पहले मुझे बताइए कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, सबको सब क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, next is the shortest path algorithm, means Dijkstra algorithm. There are several cases in graph, okay, where we have to need to know the shortest path from any vertex to another vertex. Okay, the best example we can take of a railway track system. Suppose one person wants to go from one station to another station, then he needs to know the shortest path from one station to another.
ओके आपको एक स्टेशन पे से दूसरे स्टेशन पे जस्ट मूव करना है. ओके तो फॉर आपको क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ. यू नो द पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ कि वन स्टेशन पे how to go particular one station to another station. Okay, here station represent the node and track represent the edges. There can be several paths for going, but the shortest path is that path in which the sum of weights of the included edges is the minimum. Okay, अब देखिए यहाँ सपोज आपको विजिट करना है, कहाँ से, या पर्टिकुलर प्लेस न्यू दिल्ली जाना है. ओके न्यू दिल्ली आपको जाना है तो आपके पास वेरियस वेज है, वी हैव वेरियस वेज. ओके आप डायरेक्टली पर्टिकुलर क्या है, ऑटो पकड़ो सीधा आप जा सकते हो, या यूजिंग या क्या है आपका मेट्रो से आप जा सकते हो. आपके पास वेरियस वेज है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर आपका सम ऑफ वेट्स शुड बी मिनिमम. Okay, this is a particular rule of shortest path algorithm. The sum of weights of the included edges is the minimum. From starting point is our home. आप घर से चले, घर से लेकर आपका डेस्टिनेशन पॉइंट इन न्यू दिल्ली, तो आपको फाइंड करना है जो भी पर्टिकुलर स्टेशन है. ओके जो पर्टिकुलर स्टेशन है आपके, उसके अकॉर्डिंगली जस्ट यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. कौन सा छोटा पाथ आपके पास है. ओके एंड दिस इज ए एग्जाम्पल. ओके एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ए पर्टिकुलर नोड. ओके वी हैव 1 A B C D E F G. okay we have 7 nodes are there. आपको पुट करना है, आपको लेफ्ट में राइट में जस्ट मैट्रिक्स. ओके इन ए पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्म. okay and just you have to find the edges, minimum edges, but you have to put all the particular edges. Wait, or you have to mention the from starting point is A node. okay A से A का कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट आप घर से चले, आप घर से चले हो तो उसमें घर के अंदर तो कोई मेट्रो नहीं आएगी ना, आपको जाना होगा, रिक्शा पकड़नी होगी या कोई जाना होगा. ठीक है तो A से A का कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट यू हैव टू पुट 0. ओके एंड नेक्स्ट इज आप ए के कनेक्शन चेक करने हैं. ठीक है आपका ये घर है. ओके दिस इज अ पर्टिकुलर होम प्लेस. आपके पास यहाँ से चले कि घर से आप चल रहे हो तो घर से स्टेशन कौन कौन से हैं, मेरे घर के पास कौन सा स्टेशन आपको पड़ रहा है इसके अंदर, जस्ट यू हैव टू मेंशन. ए का आपका बी से कनेक्शन है, एडजेसेंट नोड है. ए का सी से कनेक्शन है, एंड सी ए का आपका डी से कनेक्शन है. दीज आर एडजेसेंट नोड्स. यू हैव टू मेंशन A से B का एडजेसेंट नोड क्या है आपके पास 3. ओके A से आपके पास C का कनेक्शन में कौन सी आती है 5, और आपके पास A से D के कनेक्शन में आती है 6. ओके अब आपको चूज करना. दीज आर पर्टिकुलर पॉइंट्स. आप घर से चलने के बाद मेरे को 3 वेज, वी हैव 3 वेज. आपने डिफरेंट वेज मेंशन किए, बट यू हैव टू चूज ए राइट वे. okay and right way means you have to put a particular shortest way. okay जो shortest coast है. अब इनमें से मैंने किसको फाइंड करना है, मेरी shortest coast is 3. A से B को आपने पकड़ा जो इसकी coast क्या है 3, because these are 5 6, this is very high coast. okay just you have to mention 3. okay आपने यहाँ पे किसको चूज किया 3 को किया. जब आप यहाँ पे 3 को चूज करोगे, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है अरे यार बोलना करो ना, पता तो चले. हेलो यस मैम यस. ओके लग रहा है बहुत भूख लग रही है आप लोगों को, है ना, इतना धीरे धीरे बोल रहे हो. अभी 10 मिनट 5 मिनट में छोड़ दूँ. ठीक है आराम से खाना पीना. अब देखिए आपने ए से बी नोड को रखा, यहाँ से उसमें उठाया. अब देखो बी के साथ एडजेसेंट नोड कौन कौन सी है, क्योंकि आपके पास पहले हम ए के कनेक्शन चेक कर रहे थे. ओके वी आर चेकिंग द कनेक्शंस ऑफ ए, एडजेसेंट नोड्स ऑफ ए, बट वी हैव चूज दिस पर्टिकुलर नोड बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट नोड. ओके अब आपने बी के कनेक्शन में चेक करना है. बी के साथ कनेक्शन में आपके पास डी नोड है. ठीक है अब देखिए आप ए से डी पे जा रहे थे तो आपकी कोस्ट कितनी लग रही थी 6 डायरेक्ट. ओके
बट आप बी के थ्रू जा रहे हो तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें 5, 3 + 2 5। ओके, जस्ट आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि बी से डी पे जब जा रहे थे आपके पास कॉस्ट कितनी पड़ रही है 5 कॉस्ट, पहले 6 पढ़ रही थी अब 5 पढ़ रही है ना। तो आप चूज करोगे कौन सी नोड को चूज करोगे, डी बाद में लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू मेंशन सी नोड। अब अपने यहाँ पे सी के कनेक्शंस के अकॉर्डिंगली चेक करना। दिस इज अ पर्टिकुलर सोर्स पॉइंट एंड दिस इज अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पे आपको जाना है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंगली जस्ट आप कनेक्शन चेक करोगे। सी नोड के थ्रू आपने यहाँ पे कनेक्शंस आपके यहाँ पे ये शो क्या कर रहा है, इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन समझते हो कि आप डायरेक्ट मूव नहीं कर पा रहे। ई एफ जी पे आप एक के थ्रू नहीं जा पा रहे। डी आपका बी से कनेक्शन जुड़ा बट बी के थ्रू भी आप नहीं जा पा रहे। ठीक है, आप बी के थ्रू भी नहीं जा पा रहे तो आपने क्या मेंशन करना है यहाँ पे, इंफिनिटी। ओके, बट जैसे आप यहाँ पे डी के कनेक्शन में आप डी को कनेक्ट करते हो, मैंने यहाँ पे इसके अंदर कनेक्शन आपके पास डी के साथ कनेक्शन जुड़ा, ऑटोमेटिकली जस्ट वी कैन मूव। आप यहाँ से मूव कर पा रहे हो डी के थ्रू, आप मूव कर रहे हो कहाँ पे, एफ पे। ठीक है, अब जैसे आपने सी नोड लिया था आप ई पे मूव कर पा रहे थे, फिर आप सीधा जी पे मूव कर पा रहे हो क्यों, सी के थ्रू एफ पे मूव कर पा रहे हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट यू हैव टू पुट द कनेक्शंस। अब आप सी के थ्रू ई पे आ रहे हो तो कोस्ट कितनी आपको लग रही है, 11 कोस्ट, फिर 8 कोस्ट लग रही है सी के थ्रू एफ पे आने पे, ई पे 11 12। तो आपको चूज करना है हर स्टेप में, जस्ट यू हैव टू चूज द पर्टिकुलर नोड्स। ठीक है, हर स्टेशन पे जैसे जैसे आप जा रहे हो ना, हर स्टेशन पे आपको चूज करना है ये वाला वे शॉर्टकट है, इधर से जाना है, और शॉर्टकट है उधर से जाना है। हर पर्टिकुलर वेज को आपको निकालना है और जस्ट यू हैव टू मेंशन द कोस्ट। ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। पेपर में आपके पास ऐसा ही ग्राफ गिवन होगा और आपको जस्ट क्या कर, एक सेकेंड रुकिएगा। हेलो हेलो